Hi, Meeta. Good morning. Hello, ma'am. Good morning. How are you? I'm good. Thank you so much. How have you been? All good? Yes, All fine? all good. Sorry, Everybody is in festival mood. Looks like. I know, I know. That's okay. Good for you. Yeah. Okay. Chalo, we'll start. So today, we have studied about social media. We have studied about, a lot of things. Today we'll be moving to ads. Now, a lot of times when we go onto Instagram and when we go onto Facebook, we see that sponsored content. राइट सो वी सी दैट हमको एक एड दिखता है या एक हमको एक इमेज दिखती है वी काइंड ऑफ सी एन इमेज वी काइंड ऑफ सी अ टेक्स्ट एंड एवरीथिंग एंड इफ वी क्लिक ऑन दैट सो वी रीच टू द प्लेस जहाँ पे हम वो पर्टिकुलर आइटम बाय कर सकते हैं ठीक है नाउ द थिंग इज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एड्स ना कैसे चलते हैं ठीक है सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फेसबुक एंड इंस्टाग्राम हाउ वी रन एड्स इज basically we will go into Google search and we'll type ads manager. Now, do you see this first one? We'll go to Uh, Ads Manager. yes. Okay. And then again, we have to go to Ads Manager. Now, this is what you see. And on the left hand side, there is this panel. On this panel, आपको select करना है campaigns. Now, this is the entire dashboard जहाँ से campaigns चलते हैं, जहाँ से you can make campaigns live, and जहाँ से you can, run ads. ठीक है? Now, how do you do it is, whenever you run ads, there is not one category of ads. There are multiple category of ads. Let's say you want, ये depend करता है आपका objective क्या है. When I say objective, it means कि what are you up for? Let's say, so do you see this create button? When I click on create, it tells me 6 things. If your goal is just you are a new brand, you want people to know you, okay? So you will be running awareness campaign. If you are a brand जो ये चाहता है कि आपके वेबसाइट पे लोग आए, people see your website. So you'll be running website traffic campaign. Third is now when you want people to engage with your post or with your ad. So then you will run engagement campaigns. Engagement campaign से क्या होता है? You get more messages, you get more video views. एक बार Meeta, please note this down. Awareness campaign is for when you want people to remember your brand. Meeta, are you writing it down? Oh, yes, ma'am. Awareness is when people want to remember the brand and the other brands. Yeah. Yeah. So how it works is you have launched a new brand, ठीक है? So अभी एकदम से आप भी कल को कोई नए ब्रांड का कैंपेन देखोगे या एड देखोगे तो डायरेक्टली यू वोंट गो टू परचेज करेक्ट सो अवेयरनेस कैंपेन सब चलाए जाते हैं व्हेन जस्ट यू वांट पीपल टू नो योर ब्रांड यू हैव अ न्यू ब्रांड एंड व्हेन जस्ट यू वांट पीपल टू नो योर ब्रांड सो दैट आगे जब आप अपने दूसरे टाइप के एड्स चलाओ शॉपिंग वाले या कोई से भी
ठीक है, तो पीपल रिमेम्बर कि हाँ इनके एड्स तो मैंने पहले भी देखे हैं. द फर्स्ट लेयर ऑफ कैंपेन्स व्हेन यू आर स्टार्टिंग न्यू एड्स. Yeah, done. What should I write about the traffic and engagement? Okay, next is traffic. Traffic is when you want somebody to come either to your website or your Instagram profile or anything specific. For example, I have an event. एक हफ्ते बाद मेरा एक event है and I want people to book passes, or I just want people to fill out or to show interest. तो मैं क्या करूंगी, स्पेसिफिक इवेंट का जो वेबसाइट यूआरएल है उसका डालकर, उसका लिंक डाल के आई विल रन ट्रैफिक एड्स. ट्रैफिक एड्स का मेन मोटो कुछ नहीं होता है, just bringing the right set of audience to the right destination. ठीक है, then is engagement. Now, lot of times you must have seen reel ads, है ना? So reel ads में क्या है? Reel ads is basically, yeah, engagement ads are basically when you want people to either like, when you want people to comment, when you want people to engage with your post or your audience in some or the other way possible. ठीक है, that is known as engagement ad. Next is lead ads. Lead ads में क्या होता है? Now, Meeta, have you ever seen you click on an ad and you go to a form kind of something जहाँ पे आप अपना डिटेल डालते हो, ठीक है? एंड डिटेल डालने के बाद क्या होता है कि डिटेल डालने के बाद ना what happens is कि they tell you कि we will call you. Have you ever been in that space? Yeah. I've seen many websites with the Correct. forms. तो उसमें क्या होता है, that is basically lead campaigns. Lead campaigns are basically जब एक आप चाहते हो कि people what people do is people basically come fill a form, okay, and you can contact them. They give you your details. Now the details कौन सी लेनी है, that is also up to you. uh that is also up to you कि आपको कौन सी डिटेल्स लेनी है. You wanna take phone number, uh you wanna take a email, you wanna take उनका address, you wanna take their city or whatever, that is all up to you. ठीक है, so यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे what happens is कि you just go and help them fill a lead form. Next is app promotion. App promotion is a lot of times you would see some ads जिसमें आप क्लिक करोगे तो वो आपको ना प्ले स्टोर पे ले जाएगा या एप्पल के ऐप स्टोर पे ले जाएगा, where you can download a certain app. So these are known as app promotion campaigns in which the primary motive is to get apps installed on your device. ठीक है, and last is sales, which is the most important for specifically e-commerce brands कि बंदा आए, परचेज करे वेबसाइट से चला जाए. देखो दो चीजें हैं, जब बंदा आपके डीएम में आएगा परचेज करने के लिए तो यू विल हैव टू टेल देम द प्राइस, आप थोड़ा सा कम करोगे, कॉन्वर्सेशन करोगे, बट सेल्स का क्या मोटिव है? सेल्स का मोटिव है दैट देयर शुड बी नो communication or coordination. The person comes to the website, they take their product, either cash on delivery करें या pay करें, whatever is their thing, they do it and they are done.
ठीक है, दैट इज नोन एज सेल्स कैंपेन्स. एनी यू वुड लाइक मी टू रिपीट, मीता? Oh no, I'm so understood. Okay, you want to write anything or shall we move ahead? Yeah, yeah, we can. Okay. Okay. So let's say we want to create a lead campaign. Lead form campaign is when you want people to either come on your website or a form or something like that. So you want to create a lead form. Okay. Now, so what will you do is you'll select the objective leads and you will press on continue. Okay. So now, first and the foremost, there are three layers of a campaign: campaign layer, ad set layer, ad layer. All of these three layers are what form a पूरा ad जो आप देखते हो. Now you have to understand कि ये सब जो आप बैकएंड पे कर रहे हो ना, ये कभी भी आपके कस्टमर को नहीं दिखता है. ठीक है, दिस इज नॉट विजिबल टू योर कस्टमर, दिस इज नॉट विजिबल टू योर टारगेट ऑडियंस. ठीक है. नाउ व्हाट इज जस्ट विजिबल इज जो भी आप इमेज डालते हो, जो भी आप कैप्शन डालते हो, या जो भी आप लिंक डालते हो, वो वाली जो लिंक है, वो वाला जो कैप्शन है, ठीक है, वो सिर्फ अपेयर होता है. आप क्या सेटअप कर रहे हो, क्या नहीं होता है, दिस इज नॉट शोन टू देम. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग. उसके बाद आता है सेकंड इज कैंपेन नेम. ठीक है. नाउ व्हाट इज अ कैंपेन नेम इज, यू नीड टू नेम योर कैंपेन, क्योंकि अब आप एक कैंपेन नहीं चला रहे हो, यू वुड बी हैविंग मल्टीपल कैंपेन्स. So now when you have multiple campaigns, what happens is you need to name your campaign so that next time when you're coming back, you know कि आपने last time कौन सा campaign चलाया था. I personally do what is I do lead campaign and I put the date. Okay. And if let's say there is some product, so today's date is 7th September. I'll put it 7th September 25. And if you have some product or something for what you are doing, you can just write product का name, right? And you can run your ad. Instead of product, you can also write service as well. That is not a problem. ठीक है. Now, buying type would remain auction only. Campaign का objective is lead, वो आपने already choose कर लिया है. Still, ये वाला जो जब आप create करने जाते हो, ये this same box appears in case you have selected wrong and you want to select it again, so you can do the edits. But the point is that एक बार आपने जब इसको आगे कर दिया, then you cannot change it. ठीक है. So now when you scroll down, so this is your budget. Now let's say you want to run on to 500 rupees per day. Minimum is 100. ठीक है. So either you can do it 100 rupees a day, either you can do it to 500 a day. This is your choice. अगर आपके पास पूरा एक बजट है, इफ यू हैव एन एंटायर बजट दैट मुझे पूरा एक कैंपेन चलाना है, सो मतलब जितना भी जब तक कैंपेन चलेगा वो इस बजट पे चलेगा, सो यू कैन सेट द लाइफ टाइम बजट एज वेल, दैट इज ऑल अपॉन यू. ठीक है. सो यूजुअली वी डू इट फॉर डेली बजट सो दैट वी कैन मॉनिटर इट, एंड कभी अगर इंक्रीज या डिक्रीज करना है सो वी कैन डू इट इफ इट इज ऑन डेली बजट. ठीक है. सो हेयर यू पुट द डेली बजट, दिस रिमेन्स दिस इटसेल्फ, इसमें कोई चेंज नहीं करना है. ए बी टेस्टिंग. नाउ व्हाट इज ए बी टेस्टिंग? ए बी टेस्टिंग इज बेसिकली आप अपने ऐड के ना दो वर्जन्स डालते हो, आप अपने ऐड के दो वर्जन्स डालते हो, और दो वर्जन्स में आप क्या देखते हो कि कौन से वाले वर्जन को सबसे ज्यादा यू नो इम्प्रेशंस मिले हैं, या कौन से वाले वर्जन से सबसे ज्यादा रीच आई है.
ठीक है। लेट्स से ए बी टेस्ट जब आप ऑन करते हो, लेट इफ आई एम पुटिंग ए बी टेस्टिंग ऑन हियर, तो आप क्या टेस्ट करना चाहते हो? यू वांना पुट टू क्रिएटिव्स एंड सी विच इज वर्किंग द बेस्ट, यू वांना पुट डिफरेंट ऑडियंस एंड सी विच इज वर्किंग द बेस्ट, और यू वांना प्लेसमेंट करना है या क्या करना है? सो आप एक ही चीज के दो वेरिएशंस डालते हो टू सी इन द इन नेक्स्ट 7 days व्हाट वर्क्स द बेस्ट। इसको प्लीज नोट डाउन कर लो। व्हाट इज ए बी टेस्ट? द डेफिनेशन इज कमिंग ऑन द साइड, एक बार इसको नोट डाउन कर लो प्लीज। ठीक है। ऑल्सो राइट डाउन ए बी टेस्ट कौन सी चीजों में होता है? फर्स्ट इज क्रिएटिव, सेकंड इज ऑडियंस। Creative, audience, placement, and custom. So any two things you can put on to test to understand what is working the best for you. सब लिख लिया मीता? हाँ, यस मैम। Perfect.
So now that you have set up all of this, last is special ad categories. Special categories when, for example, if your ads are into financial products, मतलब आप credit card बेच रहे हो, आप you're talking about SIP, you're talking about mutual funds, या आप किसी को जॉब ऑफर कर रहे हो, या आप किसी को प्रॉपर्टी बेच रहे हो, और या फिर आप कोई सोशल इश्यूज के बारे में बता रहे हो या पॉलिटिक्स के बारे में. सो इफ योर एड्स आर इनटू दीज फोर कैटेगरीज, ठीक है, तो यू हैव टू डिक्लेयर स्पेशल कैटेगरी. ओके, विच मीन्स इज, फर्स्ट, अगर आप नॉर्मल कपड़े बेच रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल स्किन केयर बेच रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल एजुकेशन कोर्सेज बेच रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. बट इफ योर एड्स आर इनटू पॉलिटिक्स, इफ आप कोई नेता की जगह पे वोट मांग रहे हो, या यू आर ऑफरिंग अ जॉब, ठीक है, तो यू विल हैव टू सेलेक्ट वन आउट ऑफ दीज फोर कैटेगरीज. ठीक है. इफ नहीं है, so you can skip this. That is why it says if applicable. Then you can say then you can click on next. ठीक है. Now next you come on to the ad set level. I told you on the very first, now आप ad set को भी level एक नाम दे सकते हो. Why? Because you can also duplicate ad sets. So एक campaign के अंडर में you can run multiple ads as well, ad sets as well. And एक ad set के अंडर you can run multiple ads. You have to understand कि campaign एक ही रहेगा, ad set और ads multiple हो सकते हैं. ठीक है. सो नाउ कन्वर्जन लोकेशन इज इंस्टेंट फॉर्म्स. इंस्टेंट फॉर्म्स का मतलब कि एक फॉर्म आएगा यूजर्स के सामने एंड दे कैन क्विकली फिल इट. अगर आप चाहते हो कि वो आपके वेबसाइट पे आए, ठीक है, वेबसाइट पे लेट्स से अ लॉट ऑफ टाइम्स दे डोंट यूज इंस्टेंट फॉर्म, इज एफबी का इन फॉर्म. ठीक है. अगर बहुत बार ऐसा होता है कि यू वांट पीपल कम ऑन टू योर वेबसाइट एंड देन फिल द फॉर्म ऑन योर वेबसाइट. सो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि इंस्टेंट फॉर्म्स आप सेलेक्ट करते हो, अपना फेसबुक पे जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो करो. परफॉर्मेंस गोल क्या है, हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स चाहिए, हमको ज्यादा से ज्यादा लीड्स चाहिए. नो वैल्यू रूल्स या सेटिंग. बजट वी हैव ऑलरेडी डन. नाउ स्केड्यूल इज कि आप कब से स्टार्ट करना चाहते हो. बहुत बार ऐसा होता है कि यू वाज यू वांट, आपने कैंपेन आज सेटअप करके रख दिया, बट यू वांट दैट द कैंपेन शुड स्टार्ट ऑन 10th और द कैंपेन शुड स्टार्ट नेक्स्ट वीक. बट बिकॉज आपको अपने टू डूज कंप्लीट करने हैं, तो आप क्या ना, आप अपना जो कैंपेन है वो आज ही सेटअप करके चल रहे हो. ठीक है. तो आप क्या करते हो कि आप आज ही इसको सेटअप करते हो, स्केड्यूल कर देते हो कि ये जो है ना 10th को चालू होना चाहिए सुबह में 11 बजे. ठीक है. नाउ इफ यू पुट एंड डेट एज वेल. अब आप मैनुअली भी कैंपेन को मैनुअली भी ना आप कैंपेन को सेटअप कर सकते हो. मैनुअली भी ना आप कैंपेन को वैसे तो बंद कर सकते हो, बट आप क्या कर सकते हो, आप एक एंड डेट सेट कर सकते हो कि 10th को मेरा कैंपेन चालू हो, और 13th को आप इसको रन कर लो कैंपेन को. और मान लो मैं चाहती हूँ कि 2 बजे जो मेरा कैंपेन है वो बंद हो जाए. नाउ इफ यू आर सेटिंग दिस डजंट मीन्स कि मैनुअली नहीं हो सकता, पर इट्स जस्ट दैट कि बहुत बार वी वांट कि कैंपेन जो है वो ऑड टाइम्स पे सेटअप हो, ऑड टाइम्स पे बंद हो जाए. तो उसके लिए हम ये एंड डेट सेटअप कर देंगे, बट वी कैन गो एंड मैनुअली स्विच इट ऑफ एज वेल.
ठीक है. So this is your end date and your start date which you have set. Now as you go down, तो यहाँ पे अब आता है audience. Audience में a thing to note down is you can select multiple locations. Let's say I want to target Pune also, and I want to target any more area. Let's say Delhi also. ठीक है. ठीक है. So when I go to do Delhi, ठीक है. So you can do Delhi also and you can do Pune also. ठीक है. So one thing for you to note down is that you can select and you can put maximum number of locations जितनी भी. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप ना एक ही लोकेशन टारगेट कर सकते हो, दो कर सकते हो, नहीं. इवन इफ यू वांट टू डू स्पेसिफिक पिन कोड्स, ठीक है. फॉर एग्जांपल, आई वांट टू डू स्पेसिफिक पिन कोड, so I can go for pin code as well. Do you see this pin code has come up? So if I want to do specific pin codes, so I can do specific pin codes as well. ठीक है. So locations में you can do it. Now when you scroll down, you can also select कि minimum age क्या है. ठीक है. Minimum age is 26 है, या minimum age मुझे 18 के नीचे I cannot set the minimum age. The minimum age starts from 18. And now maximum age also I can set. Now how does Facebook knows कि कौन सा वाला किसका क्या एज है? बिकॉज एवरीबडी पुट्स देयर बर्थ डेट ऑन फेसबुक. नाउ अ lot of people put their right age or not put their right age. That is a different thing, but you can always select the minimum and the maximum age. ठीक है. Then you can also select gender. For example, आप स्किन केयर बेच रहे हो जो सिर्फ वुमेन के लिए है, ठीक है. तो आप क्या करोगे? आप सिर्फ वुमेन को टारगेट करोगे. या आप जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हो वो सिर्फ मेन के लिए है, ठीक है, तो आप मेन डाल दोगे. या इट इज फॉर एवरीवन, सो यू कैन पुट ऑल. सो यू कैन सेलेक्ट. what you can do is what what you can do is you can just simply target specific men or women और specific gender के लोग. ठीक है. मीरा, अभी तक कोई प्रॉब्लम है? No problem, ma'am. What is the name of this website? I can write it down. Ads manager. See, ads manager. Just simply go and type ads manager. Done. If you want, you can on your system if you are. So you can go and also see. ठीक है. Now you don't have a custom audience. What is a custom audience? Basically, a custom audience is जो आपके एड के साथ या जो आपके बिजनेस के साथ अच्छे से पहले भी इंटरेक्ट कर चुकी हैं. यानी कि लेट्स से यू हैव अ कस्टम ऑडियंस, यू हैव अ लिस्ट ऑफ पीपल जिन्होंने आपसे पहले ही ऑर्डर किया है, ठीक है. या यू हैव अ लिस्ट ऑफ पीपल जो आपके वेबसाइट पे पहले भी आ चुके हैं. ना यू विल नॉट हैव अ लिस्ट ऑफ पीपल. ये डेटा या तो गूगल एनालिटिक्स में कैप्चर होगा या फिर पिक्सल में कैच होगा. ठीक है. ये क्या होते हैं अभी बताएंगे. पहले प्लीज कस्टम ऑडियंस की डेफिनेशन को नोट डाउन कर लो. So, ma'am, what do we call this full process as?
एड्स मैनेजर पे जाके करने के लिए। सेटिंग अप एड्स ऑन फेसबुक, यू हैव सीन वो स्पॉन्सर्ड आता है, हाँ हाँ। वो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता है व्हेन अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन यू स्क्रॉल ऑन इंस्टाग्राम, तो आपके पास स्पॉन्सर्ड वाले वो आते हैं पोस्ट्स, हम्म, दैट आर नोन एज एड्स। और वो एड सेटअप करने के लिए दिस इज द डैशबोर्ड। प्लीज कस्टम ऑडियंसेस का डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, आगे चले। अब डिटेल टारगेटिंग ऑल लैंग्वेजेस, यू कैन सेलेक्ट कि आपकी आपको सिर्फ एक ही लैंग्वेज वाले लोग यूज करने हैं या जो लोग सारे लैंग्वेजेस यूज करने हैं, दैट इज ऑल योर पॉइंट। सी, you have to understand that you can customize your campaigns as much as you want, ठीक है? So this is not something that you can't do. You can customize your campaigns as much as you want, as much as you can, that is no problem, ठीक है? So you can scroll down पॉलिसी रिक्वायरमेंट्स। अगर आपके जो अगर आपका जो कैंपेन है वो सिक्योरिटी या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल एसआईपीज या म्यूचुअल फंड्स या एनीथिंग, सो यू हैव टू क्लिक दिस बॉक्स, इफ नॉट सो दैट्स ओके। उसके बाद प्लेसमेंट्स इज, ना व्हाट आर प्लेसमेंट्स? प्लेसमेंट्स इज बेसिकली वेयर यू वांट टू शो योर एड। अब आप एक ऐसी जगह से कैंपेन चला रहे हो जहां से फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे कैंपेन, दोनों पे एड्स चल सकते हैं, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स भी स्पेसिफिकली वांट कि हमारा जो कैंपेन है, हमारा जो एड है वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे दिखे या फेसबुक पे नहीं दिखे। तो आप उसको यहाँ से एडिट कर सकते हो। यू कैन स्विच ऑफ फेसबुक एंड ऑडियंस नेटवर्क एंड यू कैन जस्ट, ठीक है, इंस्टाग्राम पे ही चलेगा, ठीक है? So all of this you can customize from here. So what are placements? Placements is basically जहां जहां आप चाहते हो कि आपका एड शो हो, और आप वहां से हटा देते हो जहां से आप नहीं चाहते हो कि आपका एड शो हो, ठीक है? मीता, इसमें से कुछ यू वांट टू राइट डाउन? श्योर श्योर। जो भी आपको लिखना है यू कैन, एंड इफ देयर इज एनीथिंग यू वांट मी टू टेल यू तो आई विल।
ठीक है. Now we have completed setting up the campaign part of it and the ad set part of it. ठीक है. Now the last is where so as you keep clicking next and next, you will reach to the next list. ठीक है. Now again, since हम ads को भी duplicate कर सकते हैं, we can have multiple ads. So there is no limit of how many ad set and ad you can have in one campaign. ठीक है. So what you can do is you can name the ad as well. ठीक है. अगेन फेसबुक पेज आपका यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है जो आपने एड सेट लेवल पे किया था. इंस्टाग्राम अकाउंट आप यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर सकते हो. वैसे ये ऑलरेडी सेलेक्टेड होता है बट स्टिल यू कैन डू इट. ठीक है. उसके बाद यू स्क्रॉल डाउन, यू डू क्रिएट एड. यहाँ पे दो ऑप्शन हैं. इधर क्रिएटिव हब मॉकअप को भूल जाओ. वी हैव टू ऑप्शंस. ईदर यू क्रिएट एन ad or either you use an existing post. Create ad is when you upload a specific image या description आप specifically अलग से upload करते हो. ठीक है. एग्जिस्टिंग पोस्ट का ये मतलब है, एग्जिस्टिंग पोस्ट मीन्स कि आपके इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी जो पोस्ट हो चुकी हैं, ठीक है, वो वाले को आप ना लेते हो. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू सिलेक्ट ऑन यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, तो क्या होगा कि यहाँ पे मुझे वो ऑप्शन दे देगा सेलेक्ट करने का. ये वो पोस्ट है जो ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम पे या मेरे फेसबुक पे जो ऑलरेडी पोस्टेड है. मैं इसी में से कोई भी चूज कर सकती हूँ. ठीक है. बट इफ आई क्लिक ऑन टू क्रिएट एड, ठीक है, तो इट वुड चेंज. ये मुझसे बोलेगा सेटअप क्रिएटिव. जब मैंने किया था एग्जिस्टिंग तो ये मुझसे बोल रहा था कि सेलेक्ट करो. बट जब मैंने किया है क्रिएट एड तो ये मुझसे क्या बोल रहा है, दिस इज टेलिंग मी दैट यू कैन सेटअप अ क्रिएटिव. सेटअप क्रिएटिव का मतलब क्या है कि आप स्पेसिफिकली कोई तो एक अपने लिए जो भी इमेज है. तो व्हेन आई गो टू सेटअप क्रिएटिव आई हैव टू ऑप्शंस. ईदर आई कैन गो टू इमेज एड और अ वीडियो एड. व्हेन आई गो टू इमेज एड, ठीक है, वैसे व्हेन आई गो टू इमेज एड आई कैन अब मेरे अकाउंट में ऑलरेडी जो इमेजेस हैं या तो मैं वो ले सकती हूँ या फिर ये अपलोड के बटन पे व्हेन आई विल क्लिक तो इट विल ओपन माय कंप्यूटर का लाइब्रेरी कि मुझे क्या चाहिए. ठीक है. कि मुझे कौन सा वाला चीज अपलोड करना है. सो दैट इज ऑन मी व्हाट आई वांट टू डू और व्हाट आई वांट टू वर्क ऑन. ठीक है. यहाँ से आई टेक एनी क्रिएटिव. लेट्स से मैंने ये वाला क्रिएटिव ले लिया. ठीक है. सो व्हाट आई डू इज आई क्लिक ऑन नेक्स्ट. ठीक है. आई क्लिक ऑन प्राइमरी टेक्स्ट. अब जैसे जैसे आप यहाँ पे जो जो सेटअप करोगे ना, लेट्स से आई पुट हियर प्राइमरी. अभी के लिए जस्ट टू शोकेस यू व्हाट अपीयर्स वेयर, आई पुट हियर हेडलाइन.
एंड देन आई पुट योर डिस्क्रिप्शन। ठीक है। एंड कॉल टू एक्शन इज कि आपको क्या बटन शो होना चाहिए। अभी के लिए साइन अप है तो विल थी ओके, ठीक है, इसको डन कर दिया हमने। सो यू सी प्राइमरी टेक्स्ट अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ इमेज, हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन एड के नीचे अपीयर होती है, और जो CTA हमने सेटअप करा वो यहाँ अपीयर होता है। ठीक है। अब इवन इफ आई वांट टू चेंज, मान लो मुझे अप्लाई नाउ करना है, डू यू सी हाउ दिस चेंज्ड? ठीक है, तो ये ऐसे ना चेंज हो जाएगा। सो अगेन इवन इफ आई हैव सेट इट वंस आई कैन अगेन चेंज इट प्राइमरी, लेट्स से आई रोट 1, तो यहाँ पे ये प्राइमरी 1 हो गया। सो हाउसो एवर जैसे भी आपका एड ना सामने वाले को शो होगा, ठीक है, जैसे भी आपका एड सामने वाले बंदे को शो होगा ना, वैसे ही आपका जो एड है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है। इट डजेंट मैटर्स ऑफ हाउ यू वांट टू डू इट और व्हाट यू आर वांटिंग टू डू, जैसे भी आप अपना एड सेटअप करोगे वो पूरा का पूरा आपको यहाँ पे विजिबल होगा, कंप्लीट एज इट इज, एंड जो भी यहाँ पे विजिबल होगा इस पर्टिकुलर सेक्शन में। ठीक है। हाउ इट इज विजिबल इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ये जैसे आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है ना, दैट मीन्स वैसा ही आपके कस्टमर्स को, या वैसा ही जो भी लोग आपके एड्स देखेंगे उनको आपका एड शो होगा। एनी डाउट्स मीता? No, ma'am. ठीक है। ना उसके बाद ट्रैकिंग एंड एवरीथिंग वील सी। बट ट्रैकिंग में बेसिकली क्या होता है कि देयर इज अ थिंग नोन एज फेसबुक पिक्सल। ठीक है। फेसबुक पिक्सल को आप सेटअप कर सकते हो। ठीक है। एंड फेसबुक पिक्सल को व्हेन यू सेटअप, सो फेसबुक पिक्सल कैप्चर करता है आपकी वेबसाइट पे कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, एंड कैप्चर्स द डिटेल ऑफ एवरीबडी। ठीक है। ठीक है। नाउ ऑल ऑफ दिस इज सेटअप। वंस यू क्लिक ऑन पब्लिश, योर कैंपेन वुड बी पब्लिश। ठीक है। FB थोड़ा सा टाइम लेता है यू नो कैंपेन को लाइव करने में, अप्रूव करने में। uh, ठीक है। FB थोड़ा सा टाइम लेता है, पहले इट यूज टू टेक 24 hours, बट नाउ इट मेनली टेक्स 2 hours टू अप्रूव योर कैंपेन। वो पूरा देखता है, FB के बाय डिफॉल्ट वो देखता है कि आपका जो कैंपेन है वो कैसा है, आपका जो कैंपेन है वो कौन सा वाला है, या फिर आपका जो कैंपेन है वो यू नो आपका जो कैंपेन है वो क्या है, मतलब आपका जो कैंपेन है वो कोई पॉलिसी तो वायलेट नहीं कर रहा ना, आपका जो कैंपेन है वो कोई रेगुलर, अगर मान लो आपने डिक्लेयर नहीं करा है कि कोई कैटेगरी में फॉल करता है, जैसे म्यूचुअल फंड या SIP वाली। ठीक है। तो आपका जो कैंपेन है वो ऐसी कोई भी चीज नहीं कर रहा हो, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए FB जो है आपका पूरा कैंपेन रिव्यू करता है। वंस द रिव्यू इज कंप्लीट, देन व्हाट FB डज इज, FB जो है अपना पूरा रिव्यू जब कंप्लीट कर लेता है तो आपका कैंपेन को लाइव कर देता है। यहाँ पे जो स्टेटस है इन ड्राफ्ट से एक्टिव शो हो जाता है। ठीक है। नाउ अगर आपको कभी भी नंबर्स देखने हैं, ठीक है, कैन यू सी द डेटा हियर, कितने लिंक क्लिक्स आए हैं, कितने लोगों की रीच है, कितने लोगों के इम्प्रेशन है, कितना अमाउंट आपके कैंपेन ने अभी तक स्पेंड किया है, ऑल ऑफ द मेट्रिक्स आर विजिबल हियर। अगर आपको इन मेट्रिक्स को एक्सपोर्ट करना है, इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट देम इनटू अ शीट, ठीक है, तो आप क्या क्लिक करोगे, आप क्लिक करोगे ऑन एक्सपोर्ट।
तो व्हेन यू क्लिक ऑन टू एक्सपोर्ट, वो आपको एक पूरा ये ऐसे ऑप्शन दे देगा कि आपको CSV में करना है, XLS के साथ करना है या कैसे करना है. When you click on export, it would save into your desktop as a Excel file. ठीक है. So all of these metrics you can just export. If in case आपको इन metrics के अलावा भी और कोई metrics देखती है, और कोई metrics देखनी है, तो आप क्या करोगे? You click on plus. ठीक है. ठीक है. You can other columns ऐड करके you will see a complete thing कि आपको क्या क्या देखना है. आपको CTR देखना है, which is click through rate. Every metrics. ठीक है. Every metrics का यहाँ पे the definition would be shown so that you can understand. ठीक है. You can see the frequency as well. You can see CPC. You can see average. So any metrics you can put here, जो भी आपको ऐड में देखना है. ठीक है. मीता, any doubts? No, no, ma'am. ठीक है. एक बार आपने क्या करना है? What you have to do is you have to go एड्स मैनेजर अपना सेटअप करने की कोशिश करना. ट्राई सेटिंग अप योर एड्स मैनेजर. ठीक है. एक एड सेटअप करने की कोशिश करना एंड लेट मी नो कि हाउ यू वांट टू, you know, if you are wanting to, if you have any doubts. If not, in the next class we'll see Google Ads. ठीक है. Sure, sure. Okay, thank you so much, Meeta, for joining today. Bye bye. Thank you. Take care.